Hello students, this is Professor Vivek Tiwari from Government E. Raghavendra Rao PG Science College, Bilaspur. Today we are going to learn a very important concept in programming in C, and that is storage class. This topic includes in paper 3rd of MSc 4th semester mathematics. So let's start. What is storage class? So basically what we have learned so far, and that is how to declare a variable. Very common syntax we have used while declaring any variable. First we have to write a data type. First we have to write a data type and then write variable, and this is a variable declaration methodology used in programming in C language. So let's see how to declare a variable. First you have to write the data type. I have written integer here, then name of variable. Let's suppose x is a variable of type integer that can store integer type of value. This declaration we have already learned. But what actually variable declaration is, that we have learned. The first type that I have declared, first type that I have shown here is what actually we have learned. But what actually a variable declaration is, how it is actually declared. The actual variable declaration syntax contains first a storage class, then data type and then name of variable. So अभी तक हमने स्टोरेज क्लास को omit किया है, अभी तक हमने इसको यूज नहीं किया है. तो अगर सेकंड डिक्लेरेशन अगर हमारा सही है तो पहले डिक्लेरेशन को करते समय एरर आना चाहिए. तो अभी तक एरर क्यों नहीं आया, ये क्वेश्चन है. अगर हमारा सेकंड डिक्लेरेशन करेक्ट है तो पहले डिक्लेरेशन में एरर आना चाहिए, पर एरर नहीं आता है. क्यों एरर इसलिए नहीं आता है? क्योंकि स्टोरेज क्लासेस हैव डिफॉल्ट टाइप. बिकॉज स्टोरेज क्लासेस हैव डिफॉल्ट टाइप. दैट मीन्स अवर integer expression will automatically converted to auto integer x. That means by default storage class type of every data type is auto. So auto is a storage class. So that is the basic variable declaration. So what the basic question is, what is a storage class? A storage class tells you about the 4 important things. Whenever a storage class of a variable is declared, you have to know about the basic 4 important things, and the first thing is that is storage. That means where variable would be stored. Basically there are 2 different storage location. The first one is inside memory, or the second one is register. Either you have to store the variable inside the memory, or you have to store that variable inside CPU register. The second important thing that storage class will tell you this, and that is default initial value. What are the default initial value? That means let's suppose I have declared one variable integer x, and I am going to print. I am not initialize that variable. I am going to print the value of variable on the screen. This is the syntax to print the variable on the screen. So what will we get? That means if before initializing any variable, what are the default initial value of storage class that told by the storage class. That means we have learned, we may know about the storage where the variable would be stored by the storage class. We would know the default initial value by storage class. The third important thing is that scope. Scope tells you about in which function the value of the variable would be available. That means in which function the value of the variable would be available. That's tell about the scope. ये कॉन्सेप्ट को हम प्रोग्रामिंग के थ्रू बहुत अच्छे से समझेंगे. अभी सिर्फ ये समझ लेते हैं कि स्टोरेज क्लास से हमको क्या क्या पता चलता है. हमने पहले देखा स्टोरेज के बारे में पता चलता है, इनिशियल वैल्यू के बारे में पता चलता है, स्कोप के बारे में पता चलता है, और लाइफ टाइम. जो चौथा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है लाइफ टाइम. मतलब हाउ लॉन्ग वुड द वेरिएबल will be active in your program. So that's these 4 important things can be told by your storage class of variable. So let's start the types of storage class. Basically there are 4 different types of storage classes. The first one is a automatic storage class, the second one is a register storage class, the third one is a static storage class, and the fourth one is a external storage class. You have to know about only these 4 things that I have mentioned earlier. That means storage, default initial value, scope, and lifetime. If you understand these 4 important things about the storage class, then you can say that you have knowledge about these storage classes. Let's explore the storage classes in detail. So first we study the automatic storage class. So whatever storage class we will study later on, we will understand about only 4 important things, that is storage, its default value, scope, and lifetime. So let's start the discussion about the automatic storage class. First understand how a variable
can be declared as a automatic storage class. So first you have to write the keyword auto. Auto represent the automatic storage class. Then you have to write the data type. Here I am using integer data type. Then you have to write the name of variable. So here x is a variable of type integer and the storage class is auto. And I have told you earlier in my class is that if you will not write any storage class, then by default automatic storage class will be assigned to that variable. So the default storage class for C programming is automatic storage class. This automatic storage class variable will stored inside memory. As I have told you earlier, there are two different memory locations where your variable will be stored. The first is inside the memory or stack, and the second one is inside CPU register. So automatic storage variable will be stored inside memory. The default value for automatic variable is a garbage value. Garbage value means something which is unpredictable. It depends on machine to machine. It varies from machine to machine. The scope is local to block in which the variable is defined, and lifetime of the variable, that means activeness of the variable, is in only that block in which the variable is defined. इसका मतलब है कि अगर वेरिएबल जिस किसी भी ब्लॉक में डिफाइंड है तो आप उस वेरिएबल को सिर्फ उसी ब्लॉक में यूज कर सकते हो और तब तक यूज कर सकते हो जब तक आपका प्रोग्राम का कंट्रोल उस ब्लॉक के अंदर है. तो स्कोप का मतलब है आप किस फंक्शन ब्लॉक में आप उस वेरिएबल को यूज कर सकते हो. स्कोप का लाइफ टाइम का मतलब आप कब तक उसको यूज कर सकते हो, कब तक आपको वेरिएबल एक्टिव रहते हैं. अब इस चीज को एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. सबसे पहला एग्जांपल मैंने यहाँ पे जो लिया है वो सिर्फ ये बताने के लिए कि ऑटोमेटिक वेरिएबल का डिफॉल्ट टाइप क्या होता है. यहाँ पे देखिए, इन दिस प्रोग्राम आई हैव डिक्लेयर्ड अ डेटा टाइप integer and the variable name is a. A is a integer type of variable which is auto type, auto storage class is that. And another declaration, I have taken one more variable that is b of type integer. I did not initialize these two variable. मैंने इन दोनों वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं किया है. अब printf कमांड के थ्रू इसकी वैल्यू को स्क्रीन पे प्रिंट करने की कोशिश करते हैं. तो मतलब बिना इनिशियलाइजेशन के जो भी वैल्यू होगा वो स्क्रीन पे प्रिंट होगा. अब देखते हैं इसका क्या आउटपुट आता है. अब इसका जो आउटपुट आया वो आया है -28761 विच बिलोंग्स टू द वैल्यू ऑफ a and 12803 which belongs to value of b. That is a completely junk or garbage value, unpredictable value. अगर आप इस प्रोग्राम को अपने मशीन पे रन करेंगे तो आपको ये आउटपुट दूसरा मिलेगा. जरूरी नहीं कि आपको यही आउटपुट मिले, कुछ भी जंक वैल्यू आपको मिलेगा. तो इस प्रोग्राम से हमको ये समझ में आता है कि किसी भी ऑटोमेटिक वेरिएबल की डिफॉल्ट वैल्यू अनप्रेडिक्टेबल वैल्यू होती है. कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि क्या आउटपुट आपको मिलने वाला है. अब दूसरे चीज के बारे में बात करें जो कि है स्कोप और लाइफ टाइम ऑफ ऑटोमेटिक वेरिएबल. अब इस प्रोग्राम में देखिए, इस प्रोग्राम में मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया है a जो कि ऑटोमेटिक टाइप का है, इंटीजर वेरिएबल है, मतलब ये इंटीजर वैल्यू स्टोर कर सकता है. अब सबसे इंपॉर्टेंट बात हमें ये देखनी है, इस प्रोग्राम के थ्रू हम ये सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि इस वेरिएबल का स्कोप कहाँ तक है और इसका लाइफ टाइम कहाँ तक है. जैसे हमने पहले ऑटोमेटिक वेरिएबल के डिक्लेरेशन में पढ़ा था, जब हम पढ़ रहे थे, तो स्कोप कहाँ तक होता है, जिस ब्लॉक में वो डिफाइंड होता है उस ब्लॉक तक उसका स्कोप रहता है. मतलब ये वेरिएबल a इज इक्वल टू 1 है, वो किस ब्लॉक में डिफाइंड है, डेफिनेटली वो मेन ब्लॉक में है. यहाँ से इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और ये कहाँ तक एंड हो रहा है, वो एंड हो रहा है इसके अंदर. इसका मतलब है इस पूरे मेन के अंदर ये एक्टिव रहेगा. मतलब ये लाइफ टाइम इसका क्या रहेगा, पूरे मेन के अंदर किसी भी ब्लॉक में इसको यूज कर सकते हैं. अब देखिए, अब मेन ब्लॉक के अंदर एक ब्लॉक ये क्रिएट हो रहा है, दूसरा ब्लॉक ये क्रिएट हो रहा है, तीसरा ब्लॉक ये क्रिएट हो रहा है. तीसरे ब्लॉक के अंदर हम इसको स्क्रीन पर प्रिंट करने की कोशिश करते हैं और इसका वैल्यू क्या आने वाला है, डेफिनेटली इसका वैल्यू आएगा 1. क्यों? क्योंकि जो वेरिएबल a है वो मेन ब्लॉक के अंदर है और ये जो तीसरा ब्लॉक है, तीसरा ब्लॉक मेन ब्लॉक के अंदर है, इसलिए यहाँ पे भी वैल्यू उसका 1 रहेगा. तो यहाँ पे स्क्रीन पे प्रिंट होना चाहिए आपका जो आउटपुट, वो प्रिंट होना चाहिए 1. अब हम दूसरे ब्लॉक पे आते हैं. दूसरे ब्लॉक मतलब ये वाले ब्लॉक पे. ये वाले ब्लॉक पे देखिए, यहाँ पे भी एक प्रिंटफ स्टेटमेंट है. इस प्रिंटफ स्टेटमेंट को देखने के बाद हमको ये समझ में आता है कि अब यहाँ पे a का वैल्यू क्या होना चाहिए, यहाँ पे भी a का वैल्यू होगा 1. क्यों होगा 1? क्योंकि ये ब्लॉक भी बाय डिफॉल्ट मेन ब्लॉक के अंदर है, इसलिए यहाँ पे भी वैल्यू प्रिंट करेगा 1. अब तीसरे ब्लॉक के अंदर आइए. तीसरे ब्लॉक में भी हमको
ए की वैल्यू को प्रिंट कराना है, यहाँ पे भी वैल्यू होना चाहिए ए का वैल्यू 1। तो इसका मतलब है कि ये हमको समझ में आ रहा है कि अगर हमने ए वेरिएबल को सबसे मेन ब्लॉक में डिफाइन किया है तो मेन ब्लॉक के अंदर जितने भी ब्लॉक होंगे वो वेरिएबल सारे ब्लॉक में एक्सेसिबल रहेगा। अब चलिए देखते हैं कि हमारा इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आता है। इस प्रोग्राम के आउटपुट को देखते हैं। देखिए, आप जब इस प्रोग्राम को कंप्यूटर पर रन करोगे तो आपको आउटपुट मिलेगा 1 1 और 1। जो पहला 1 है वो इनर मोस्ट ब्लॉक को शो करता है, दूसरा 1 है वो उसके बाद के ब्लॉक का है, और तीसरा 1 है तीसरे ब्लॉक का है। अब ये प्रॉब्लम ये समझ में आता है इसमें कि इसका स्कोप क्या है। अब नेक्स्ट प्रोग्राम के थ्रू देखते हैं। इसी प्रोग्राम में थोड़ा सा माइनर मॉडिफिकेशन मैंने किया है, और वो सिर्फ मॉडिफिकेशन ये है कि मैंने जो थर्ड ब्लॉक था उसके अंदर a इज इक्वल टू 2 डिफाइन कर दिया है। अब हमारा आउटपुट देखिए, अब हमारा आउटपुट क्या आने वाला है। सबसे पहले देखिए a इज इक्वल टू 1 मेन के अंदर डिफाइन है। इसका मतलब है कि पूरे मेन ब्लॉक के अंदर आप इसको एक्सेस कर सकते हो, मतलब ये थर्ड ब्लॉक भी इसको एक्सेस कर सकता है। अब देखें, अगर a इज इक्वल टू 2 थर्ड ब्लॉक में a इज इक्वल टू 2 हो गया तो स्क्रीन पे क्या प्रिंट होगा? डेफिनेटली a की वैल्यू यहाँ पे 2 प्रिंट हो जाएगी। जब a की वैल्यू 2 प्रिंट हो गई, अब इसके बाद आप दूसरे ब्लॉक से आ जाते हैं, इस ब्लॉक से बाहर आते हैं, मतलब आप यहाँ पे पहुंच जाते हैं। अब a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू अभी भी 2 ही रहेगी, क्योंकि जो थर्ड ब्लॉक था उसके अंदर हमने वैल्यू को चेंज कर दिया था। तो अब यहाँ पे भी 2 प्रिंट होगा। अब तीसरे ब्लॉक में आ जाते हैं, मतलब यहाँ से हम निकल के बाहर आ गए। अब इसके बाद इसमें वैल्यू को प्रिंट करने की कोशिश करते हैं तो क्या आउटपुट आना चाहिए? यहाँ भी आउटपुट आना चाहिए 2। तो इस प्रोग्राम से हमको ये समझ में आता है कि ये जो a है वो किसी भी ब्लॉक से एक्सेसिबल है और कोई भी ब्लॉक उसके वैल्यू को चेंज कर सकता है। तो ये इस प्रोग्राम के थ्रू हमने देखा कि किस तरीके से प्रोग्राम जो वेरिएबल है, ऑटोमेटिक वेरिएबल है, वो ब्लॉक में एक्सेसिबल होता है। अब देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आएगा। इसका आउटपुट जो मैंने आपको बताया था, आउटपुट आपके स्क्रीन पे आएगा 2 2 एंड 2। आप इस प्रोग्राम को रन करके देख सकते हैं। अब जो तीसरा प्रोग्राम है, अब ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। इसमें आपको बहुत कुछ समझ में आएगा और जो मेन ऑब्जेक्टिव है आपको इस प्रोग्राम के थ्रू ही समझ में आने वाला है। अब देखिए, सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया ऑटो इंटीजर a। ये कहाँ पे डिफाइंड है? वो मेन ब्लॉक के अंदर डिफाइंड है, मतलब इसका स्कोप है इस पूरे ब्लॉक के अंदर। उसके बाद मैंने एक नया ब्लॉक क्रिएट किया, ये वाला ब्लॉक, ये नया ब्लॉक है, ये ब्लॉक नंबर है हमारा 2, जो कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है? ये डिफाइंड है। अब यहाँ पे मैंने एक तीसरा ब्लॉक भी क्रिएट किया है। ये तीसरा ब्लॉक देखिए, ये एक तीसरा ब्लॉक है। अब ये तीसरे ब्लॉक में भी मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया हुआ है। अब देखिए, अब आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। सबसे पहले ब्लॉक पे a इज इक्वल टू 1 डिफाइंड है, दूसरे ब्लॉक पे सेम वेरिएबल का मल्टीपल डिक्लेरेशन है a इज इक्वल टू 2, और तीसरे ब्लॉक में a इज इक्वल टू 3 है। जो तीसरे ब्लॉक में a इज इक्वल टू 3 है वो तीसरे स्कोप के अंदर है। इसका मतलब है इस स्कोप के बाहर जाते ही इसकी वैल्यू वो आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो इस पोजीशन पे, यहाँ पे, ये वाले पोजीशन पे आपको आउटपुट क्या मिलने वाला है? जब आप स्क्रीन पे प्रिंट करेंगे तो आपको आउटपुट मिलेगा a इज इक्वल टू 3। तो आपके स्क्रीन पे प्रिंट होगा 3। अब इस 3 से, इस ब्लॉक से आप जैसे बाहर आएंगे, आप यहाँ पे आएंगे, मतलब आप सेकंड ब्लॉक पे हैं। आप ये रेड जो एरिया दिख रहा है उसके अंदर हैं। इस एरिया पे a की वैल्यू कितनी है? इस एरिया पे a की वैल्यू है 2। इस एरिया पे a की वैल्यू है 2। जब आप स्क्रीन पे इसको प्रिंट करने चलेंगे तो आपकी स्क्रीन पे जो आपका आउटपुट मिलने वाला है वो आउटपुट होने वाला है 2। अब इस ब्लॉक से भी बाहर आ जाइए। इस ब्लॉक से जब जैसे हम बाहर आते हैं, हम आउटर मोस्ट ब्लॉक में पहुंच चुके हैं जहां a की वैल्यू कितनी थी? a की वैल्यू थी 1। जब हम इसको स्क्रीन पे प्रिंट करेंगे तो हमको जो आउटपुट मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए 1। अब हम देखते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आता है। आप इस आउटपुट को कंसिडर करिए। अब देखिए हमारा आउटपुट क्या आने वाला है। हमारा आउटपुट आने वाला है 3 2 1। 3 बिलोंग्स टू इनर मोस्ट ब्लॉक, क्योंकि इस ब्लॉक में a की वैल्यू 3 है और इस a की वैल्यू को आप दूसरे ब्लॉक में एक्सेस नहीं कर सकते। यही तो स्कोप रूल है। ये स्कोप रूल हमको क्या बताता है कि ऑटोमेटिक वेरिएबल जिस ब्लॉक में डिफाइंड होता है आप उसको सिर्फ उसी ब्लॉक में एक्सेस कर सकते हो। तो जो ये इंटीजर a इज इक्वल टू 3 है वो इस पर्टिकुलर ब्लॉक में डिफाइंड हुआ है। इसका मतलब इस ब्लॉक के बाहर आप इस प्रोग्राम को, इस वैल्यू को एक्सेस नहीं कर सकते हो। जो दूसरा 2 मिला है हमको, जो सेकंड ब्लॉक है उसका मिला है,
इस 2 में, इस ब्लॉक में a की वैल्यू 2 डिफाइंड है, तो आप इस ब्लॉक पे a की वैल्यू सिर्फ 2 ही यूज कर सकते हैं, आप a की वैल्यू 1 यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनर मोस्ट जो डिक्लेरेशन है वो आउटर मोस्ट डिक्लेरेशन को ऑब्सोलेट कर देता है। अब तीसरे ब्लॉक पे हम देखें, तीसरे ब्लॉक पे a की वैल्यू 1 डिफाइंड है, इसलिए आपको यहाँ पे आउटपुट मिला 1। तो इस तरीके से हमने देखा कि हम किस तरीके से ऑटोमेटिक वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हैं, किस तरीके से ऑटोमेटिक वेरिएबल को यूज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं रजिस्टर स्टोरेज क्लास। रजिस्टर स्टोरेज क्लास और ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास में सिर्फ सिंगल डिफरेंस है, एंड दैट डिफरेंस इज द स्टोरेज लोकेशन। आप ऑटोमेटिक वेरिएबल को मेमोरी में स्टोर करते हो और रजिस्टर वेरिएबल को सीपीयू रजिस्टर में स्टोर करते हो। बाकी सारे कॉमन है, मतलब डिफॉल्ट वैल्यू आपको हमेशा गार्बेज मिलेगा, स्कोप लोकल टू ब्लॉक रहेगा जिस ब्लॉक में वो डिफाइंड है, लाइफ टाइम भी टिल द कंट्रोल रिमेन्स विद इन द ब्लॉक इन विच वेरिएबल इज डिफाइंड, मतलब जब तक आपका कंट्रोल उस ब्लॉक के अंदर है आप उस वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हो, जब तक आप उस ब्लॉक के अंदर हो उस वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हो। सिर्फ डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है आपका सीपीयू रजिस्टर का। बाकी जो प्रोग्राम हमने पुराना एक्सेस किया सेम प्रोग्राम को आप रन करके आप देख सकते हो, आपको आउटपुट ऑलमोस्ट सेम मिलने वाला है। तो पर डिफरेंस क्या है, सीपीयू रजिस्टर, डिफरेंस है कि स्टोरेज इसका है सीपीयू रजिस्टर। अब सीपीयू रजिस्टर में जो भी आप स्टोर करते हो, वॉट एवर वैल्यू यू स्टोर्ड इन योर सीपीयू रजिस्टर, इट ऑलवेज एक्सेस फास्टर। दैट मीन्स whatever the data you will store in the register, that is directly accessible memory by your processor, so it will access faster. You have to use register storage class for only those variables that are being used very often in program. That means you can use your register variable in loop counter. ये register variable भी limited है, इसलिए आपको इसका यूज बहुत ही सावधानी पूर्वक करना है। सिर्फ वेरिएबल को रजिस्टर डिक्लेयर कर देने से वो वेरिएबल रजिस्टर वेरिएबल नहीं हो जाता। यू जस्ट मेकिंग अ request to compiler that assign my variable as a register variable. Whenever the register is free, since we are having very limited number of register, then compiler will allocate space inside CPU register. अदरवाइज आपका जो वेरिएबल है वो ऑटोमेटिक वेरिएबल ही रहेगा, रजिस्टर वेरिएबल नहीं बन पाएगा। इस बात को ध्यान रखना है, इसलिए रजिस्टर स्टोरेज क्लास का उपयोग बहुत ही सावधानी पूर्व तरीके से हमको करना है। तो हमने ये क्या सीखा कि सिर्फ मेमोरी में डिफरेंस है, बाकी सब आपको सेम है, चाहे आप ऑटोमेटिक वेरिएबल यूज करो चाहे रजिस्टर वेरिएबल यूज करो। अब देखते हैं इसको प्रोग्रामिंग के थ्रू कि रजिस्टर वेरिएबल क्या होता है। एक चीज जो इंपॉर्टेंट चीजें जो हमको ध्यान रखना है इसमें, जो मैं बताना आपको भूल गया था, वो ये है कि रजिस्टर वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं, रजिस्टर कीवर्ड के थ्रू। आपको रजिस्टर कीवर्ड लिखना है, फिर डेटा टाइप लिखना है, फिर आपको वेरिएबल का नाम लिखना है। अब इस प्रोग्राम के थ्रू मैंने इनिशियलाइज नहीं किया, इसको प्रिंट करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या मिलेगा, कोई एक वैल्यू, मान लीजिए वो वैल्यू आ गया 842, ये जंक वैल्यू है, ये गार्बेज वैल्यू, ये अनप्रिडिक्टेबल वैल्यू है। हो सकता है हर बार के रन में आपको अलग अलग आउटपुट मिले, आपके मशीन में जब इस प्रोग्राम को रन करें तो आपको ये आउटपुट ना मिले, आपको कोई दूसरा आउटपुट मिले, बट वॉट एवर आउटपुट यू विल गेट दैट इज गार्बेज और जंक वैल्यू। सो रजिस्टर वेरिएबल ऑलवेज जनरेट अ गार्बेज और जंक वैल्यू एज अ डिफॉल्ट वैल्यू। अगर आप इनिशियलाइज नहीं करोगे तो यू विल गेट अ जंक वैल्यू। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट प्रोग्राम अबाउट द रजिस्टर वेरिएबल. That is a very important program. You can try this program in automatic storage class also. रजिस्टर की जगह आप ऑटोमेटिक लिख दीजिए और उसके बाद देखिए कि क्या होता है। एक फंक्शन मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया है void display, मतलब दिस डिस्प्ले फंक्शन विल एक्सेप्ट नथिंग एंड रिटर्न नथिंग। मेन के अंदर CLR एक फंक्शन है स्क्रीन को क्लियर करने के लिए। डिस्प्ले फंक्शन को मैं 3 बार कॉल कर रहा हूँ। अब डिस्प्ले फंक्शन के डेफिनेशन में देखिए, डिस्प्ले फंक्शन के अंदर मैंने एक रजिस्टर वेरिएबल डिफाइन किया है, इंटीजर a इज इक्वल टू 1, और इसको मैं स्क्रीन पे प्रिंट करता हूं। मतलब जब भी ये वेरिएबल फंक्शन कॉल होगा a की वैल्यू स्क्रीन पे प्रिंट होगी। मतलब जब ये पहली बार कॉल होगा तो आउटपुट क्या आना चाहिए, यहाँ पे आउटपुट आना चाहिए 1। अब नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड में देखिए a की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाती है, क्या हो जाएगी यहाँ पे, a की वैल्यू अब हो जाएगी 2। ए की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई, ए की वैल्यू 2 होगी। अब इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। अब जब हम इसको देखते हैं आउटपुट, तो इसका आउटपुट आता है 1 1 एंड 1। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब हमने पहली बार कॉल किया तो ये 1 तो क्लियर है, ये 1 कैसे आया, ये बहुत आसानी से क्लियर है, डिस्प्ले कॉल होगा, ए इज इक्वल टू 1 है। जब प्रिंट करते हैं तो ये 1 आपके स्क्रीन पे ये प्रिंट हो जाएगा 1। अब ए की वैल्यू तो 2 हो गई है यहाँ से, तो जब नेक्स्ट टाइम कॉल किए तो यहाँ पे 2 क्यों प्रिंट नहीं किया, यहाँ पे 1 क्यों प्रिंट किया, ये क्वेश्चन है।
इस क्वेश्चन का आंसर है बिकॉज द स्कोप ऑफ द वेरिएबल a इज लिमिटेड टू दिस ब्लॉक ओनली. Whenever you will call again the display function, a new variable will be created. जैसे ही इसका स्कोप खत्म होता है ये वेरिएबल डिस्ट्रॉय हो जाता है. ऑटोमेटिक वेरिएबल या रजिस्टर वेरिएबल स्कोप चालू होते ही स्टार्ट होता है, स्कोप जैसे ही बंद होगा वो डिस्ट्रॉय हो जाता है. तो पहले जब आपने डिस्प्ले को कॉल किया तो आउटपुट 1 आया, ए इंक्रीमेंट होकर 2 हुआ, लेकिन जैसे ही ये स्कोप ओवर हुआ ये वैल्यू डिस्ट्रॉय हो गया. नेक्स्ट टाइम जब आप कॉल करते हो, जब आप कॉल करोगे तो इसमें क्या आपको आउटपुट मिलेगा, फिर से ए इनिशियलाइज होगा 1 के साथ, और 1 के साथ इनिशियलाइज होने के बाद फिर से ये 1 प्रिंट करेगा. जब थर्ड टाइम आप कॉल करोगे तो फिर से ये 1 प्रिंट करेगा. इसका मतलब है कि चाहे आप ऑटोमेटिक वेरिएबल यूज करो, चाहे आप रजिस्टर वेरिएबल यूज करो, आप वैल्यू रिटेन नहीं कर सकते हो. दैट वैल्यू विल बी diminished as soon as your scope will end. So that is a very important property about your register variable. So I think you will understand the basic concept of register variable. So next let's start the third one, that is a static storage class. That is the different type of storage class. The keyword to define a variable as a static is static. First you have to write the name as static, then integer, then x, data type and name of variable. So static is a keyword to define any variable as a static storage class. It is completely different from automatic and register storage class. And what is the difference? This is the similarity. Storage is again in memory. The difference is that the default value is 0. Whenever you will define whenever you will declare any variable as a static variable, the default value for that variable is 0, not any garbage value. Now the scope means local to block in which the variable is defined. Scope is again the same as automatic and register, that is local to block in which the variable is defined, but the difference is lifetime. The value of the variable persists between different function call. Value of the variable persists between different function call. That is the difference. हमने पहले के प्रोग्राम में क्या देखा कि जो वैल्यू ऑफ वेरिएबल है वो जब दूसरे फंक्शन कॉल में उसका वैल्यू वो डिमिनिश हो जा रहा है, वो आप उसको यूज नहीं कर पा रहे हो, पर स्टैटिक में ऐसा नहीं होगा. अब इसको प्रोग्राम के थ्रू देखते हैं. सबसे पहले हम देखते हैं डिफॉल्ट वैल्यू के लिए. यहाँ पे मैंने एक स्टैटिक इंटीजर लिया हुआ है, स्टैटिक इंटीजर ए डिफाइन किया हुआ है, और उसको हम स्क्रीन पे प्रिंट करेंगे तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा, 0. दैट इज द डिफॉल्ट वैल्यू फॉर स्टैटिक वेरिएबल. अब दूसरे प्रोग्राम में देखते हैं. दूसरे प्रोग्राम में हमको ये समझ में आएगा कि स्टैटिक वेरिएबल अपने वैल्यू को रिटेन कर सकता है. कैसे? सेम प्रोग्राम है जो मैंने रजिस्टर वेरिएबल के टाइम पे यूज किया था, आप उसको ऑटोमेटिक में भी यूज कर सकते हैं. बस डिफरेंस इतना है कि डिस्प्ले फंक्शन में रजिस्टर की जगह मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है स्टैटिक. मतलब ए क्या है, अब स्टैटिक वेरिएबल. ए स्टैटिक वेरिएबल है, अब इसके पास कैपेबिलिटी है कि वो अपने वैल्यू को स्टोर कर सकता है. तो जब आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करते हो तो ए की वैल्यू कितनी रहती है, 1 स्क्रीन पे प्रिंट होती है, और ए की वैल्यू क्या हो जाती है, 2. जब आप दूसरे टाइम फंक्शन को कॉल करते हो तो दूसरे टाइम अब ए की वैल्यू 1 नहीं रहेगी, इनिशियलाइजेशन सिर्फ 1 रहेगा. ए की वैल्यू कितनी थी, 2. तो यहाँ आपकी स्क्रीन पे क्या प्रिंट होगा, सबसे पहले प्रिंट हुआ था 1. जब आप सेकंड टाइम इसको प्रिंट करने जाओगे तो आपको स्क्रीन पे मिलेगा 2, और जब आप थर्ड टाइम डिस्प्ले को कॉल करोगे तो आपको स्क्रीन पे मिलेगा 3. तो ये आपका आउटपुट होने वाला है इस प्रोग्राम के साथ. तो देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आने वाला है. जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो हमको आउटपुट मिलेगा 1 2 3. एक बार फिर से देखते हैं. जब फर्स्ट टाइम हम डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किए, ए इनिशियलाइज हुआ, ए इज इक्वल टू 1, प्रिंट एफ ए की, हमने ए प्रिंट कर लिया. अब ए की वैल्यू कितनी हो गई, 2. जब सेकंड टाइम डिस्प्ले फंक्शन हम कॉल करें, जब सेकंड टाइम हम डिस्प्ले फंक्शन कॉल करते हैं उस समय फिर से ए इक्वल टू 1 में आता है कंट्रोल, लेकिन ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं करता क्योंकि स्टैटिक वेरिएबल सिर्फ एक ही बार इनिशियलाइज होता है और वो अपने पुराने वैल्यू को रिटेन करता है. जब पुराने वैल्यू को रिटेन करता है तो ए की पुरानी वैल्यू क्या थी, 2. तो ये यहाँ पे 2 स्क्रीन पे प्रिंट हो जाता है. अब 2 प्लस प्लस मतलब यहाँ पे हो गया 3. जब थर्ड टाइम आप डिस्प्ले को कॉल करोगे तो यहाँ पे आपको क्या प्रिंट होगा, 3, और ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4. तो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से स्टैटिक वेरिएबल काम करता है. तो ये तो हो गया लाइफ टाइम के बारे में. अगर हम स्कोप के बारे में बात करें, स्कोप के बारे में बात करें, इसका मतलब है स्कोप क्या, स्कोप का मतलब है कि किसी दूसरे फंक्शन में आप इसको यूज नहीं कर सकते. मतलब अगर यहाँ पे मैंने मेन के अंदर, इस लाइन के अंदर अगर मैं यहाँ पे लिखूं प्रिंट एफ
%d और यहाँ पे मैं प्रिंट करने की कोशिश करूँ a, तो you will get an error. And what is the error? The error is undefined symbol a. क्योंकि जो a है, a का स्कोप सिर्फ इस फंक्शन के अंदर है, a का स्कोप है सिर्फ इस फंक्शन के अंदर, आप इसको मेन फंक्शन के अंदर आप यूज नहीं कर सकते। इसीलिए ये स्कोप हो गया, मतलब आप किस फंक्शन के अंदर इसको यूज कर सकते हैं। और इसके थ्रू हमने लाइफ टाइम देखा कि a वेरिएबल जो कि हमने डिक्लेयर किया था डिस्प्ले के अंदर, आप उसको एक्सेस कर सकते हो थ्रू आउट द फंक्शन, वो अपना वैल्यू रिटेन कर सकता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि स्टैटिक वेरिएबल किस तरीके से काम करता है। अब हम लास्ट में एक और एक प्रोग्राम के थ्रू मैं आपको बताता हूँ कि स्टैटिक वेरिएबल कैसे रन कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल इस प्रोग्राम में देखिए, इस प्रोग्राम में एक डिस्प्ले फंक्शन है। डिस्प्ले फंक्शन में मैंने लिखा है ++x, फिर printf %d x, मैंने लिया है स्टैटिक इंटीजर x। अब इस वैल्यू को मैं प्रिंट करता हूँ। इस वैल्यू को जब मैं प्रिंट करूँगा तो x की वैल्यू क्या प्रिंट होगी, 0 प्रिंट होगी। फिर मैं डिस्प्ले को कॉल करूँगा। डिस्प्ले कॉल करने के बाद मैंने यहाँ पे क्या किया है, ++x। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि जो स्टैटिक वेरिएबल x है वो डिक्लेयर्ड किसके अंदर है, वो मेन के अंदर डिक्लेयर्ड है। जब मेन के अंदर डिक्लेयर्ड है तो डिस्प्ले फंक्शन उसको कैसे यूज कर सकता है। मतलब यहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है, एरर मिलने वाला है। जब आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो डेफिनेटली एक आपको एरर मैसेज मिलेगा। वो एरर मैसेज है अनडिफाइंड सिंबल x। तो इस तरीके से हमने देखा कि स्टोरेज क्लास में स्कोप क्या होता है और लाइफ टाइम क्या होता है। अब सबसे लास्ट स्टोरेज क्लास अब हम देखते हैं एक्सटर्न स्टोरेज क्लास। एक्सटर्न स्टोरेज क्लास में अब देखते हैं एक्सटर्न स्टोरेज क्लास और स्टैटिक स्टोरेज क्लास, बहुत सारी सिमिलरिटीज है इसमें। पहला सिमिलरिटी ये है कि दोनों मेमोरी में स्टोर होते हैं। एक्सटर्न स्टोरेज क्लास भी मेमोरी में स्टोर होता है और स्टैटिक स्टोरेज क्लास भी मेमोरी में स्टोर होता है। जैसे हम यहाँ देख पा रहे हैं दोनों में डिफॉल्ट वैल्यू 0 है। स्टैटिक के केस में भी डिफॉल्ट वैल्यू 0 था। अब डिफरेंस ये है कि इसका स्कोप ग्लोबल होता है। बाकी तीनों स्टोरेज क्लास, वेदर इट इज ऑटोमेटिक, वेदर रजिस्टर और स्टैटिक, तीनों में हमने देखा कि उसका स्कोप था लोकल। जिस ब्लॉक में वो डिफाइन होता था आप उसको उसी ब्लॉक में यूज कर सकते थे, दूसरे ब्लॉक में आप उसको यूज नहीं कर सकते थे। परंतु यहाँ पे एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास का जो स्कोप है वो होता है ग्लोबल और ये थ्रू आउट द प्रोग्राम एक्टिव रहता है। मतलब इसका लाइफ टाइम थ्रू आउट द प्रोग्राम है। बाकी के केस में ब्लॉक खत्म होते ही लाइफ टाइम खत्म हो जाता है, प्रोग्राम जो वेरिएबल है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। पर एक्सटर्न के केस में ये नहीं हो रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जैसा कि हमने पिछले प्रोग्राम में देखा था, पिछले प्रोग्राम में जब हमने देखा, यहाँ पे देखिए मैंने जो वेरिएबल x डिफाइन किया था वो वॉइड मेन के अंदर डिफाइन किया था। जब ये वॉइड मेन के अंदर डिफाइन किया मतलब इसका स्कोप मेन तक ही लिमिटेड रहा। और जब मैंने इसको डिस्प्ले फंक्शन के अंदर यूज करने की कोशिश की तो मुझे एक एरर मैसेज मिला एंड द एरर मैसेज इज दिस वन, अनडिफाइंड सिंबल x, क्योंकि उसका स्कोप लोकल था। पर अगर इसी को हम एक्सटर्न वेरिएबल के केस में देखें तो जो भी वेरिएबल एक्सटर्न वेरिएबल रहेगा उसका स्कोप रहेगा ग्लोबल। अब इस चीज को प्रोग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। देखिए मैंने एक प्रोग्राम यहाँ पे लिखा हुआ है। इस प्रोग्राम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज पहले लाइन पे आप आइए। पहला तो हेडर फाइल मैंने लिख दिया, उसके बाद ये इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज द डिक्लेरेशन पार्ट ऑफ योर एक्सटर्न स्टोरेज क्लास। फर्स्ट यू हैव टू राइट द कीवर्ड एक्सटर्न विच इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द वेरिएबल इज अ एक्सटर्न, वेरिएबल बिलोंग्स टू एक्सटर्न स्टोरेज class. So extern is a keyword, int is a data type and a is a variable declaration. This tells the compiler that there is one global variable a which will be defined later anywhere in your program. I have defined two different functions, one is increment and the another is decrement. बिल्कुल जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ये वेरिएबल की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा इंक्रीमेंट फंक्शन, और डिक्रीमेंट फंक्शन वेरिएबल की वैल्यू को डिक्रीमेंट करेगा। यहाँ पे इसको डेफिनेशंस को देख लेते हैं। इंक्रीमेंट, जो भी वेरिएबल मैंने डिफाइन किया ग्लोबल वेरिएबल, वो इंक्रीमेंट कर रहा है और उसको वैल्यू को स्क्रीन पे प्रिंट कर रहा है। डिक्रीमेंट फंक्शन उसकी वैल्यू को डिक्रीमेंट कर रहा है और उसकी वैल्यू को स्क्रीन पे प्रिंट कर रहा है। बहुत ही सिंपल फंक्शन है, हमने देखा। अब मेन फंक्शन में आते हैं। मेन फंक्शन के अंदर ए की वैल्यू को मैं प्रिंट कर रहा हूँ। जब मैं ए की वैल्यू को प्रिंट करूंगा तो जो भी इसका डिफॉल्ट वैल्यू है, जो मैंने इसको इनिशियलाइज किया है, वो वैल्यू स्क्रीन पे प्रिंट होगा। उसके बाद इंक्रीमेंट फंक्शन को मैंने कॉल किया है 3 बार, 1 2 3 टाइम्स मैंने इंक्रीमेंट फंक्शन को कॉल किया, 2 बार डिक्रीमेंट फंक्शन को कॉल किया है। और सबसे लास्ट में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज द डेफिनेशन। ये है डेफिनेशन पार्ट। सबसे पहले हमने देखा था डिक्लेरेशन पार्ट
और मेन के बाद मैंने इसको डिफाइन किया। जब आप वेरिएबल को डिक्लेयर करते हो एज अ टाइप ऑफ एक्सटर्न, ये मेमोरी में स्पेस नहीं लेता। ये स्पेस कब लेता है? जब आप इसको डिफाइन करते हो। अब जब इसको डिफाइन किया तो ये मेमोरी में अपना स्पेस ले लेगा। अब जब हम इसको प्रिंट करने जाएंगे, पहला लाइन एग्जीक्यूट करेगा a इज इक्वल टू %d। सो व्हाट इज द इनिशियल वैल्यू? द इनिशियल वैल्यू इज 10 दैट आई हैव डिफाइंड। सो हियर 10 विल बी प्रिंटेड ऑन स्क्रीन। नाउ द नेक्स्ट लाइन में मैंने क्या यूज किया है? इंक्रीमेंट फंक्शन। जब इंक्रीमेंट पे आएगा तो a की वैल्यू, इनिशियल वैल्यू थी 10, इंक्रीमेंट कॉल होगा a प्लस प्लस, ये हो जाएगा 11। स्क्रीन पे क्या प्रिंट करेगा? 11। मतलब इस इंक्रीमेंट को जब हम रन करेंगे तो हमारे स्क्रीन पे जो आउटपुट आने वाला है वो आएगा 11। फिर से इंक्रीमेंट कॉल करो। इंक्रीमेंट जब दोबारा कॉल होगा तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ पे 12 हो जाएगी। स्क्रीन पे यहाँ पे हमको क्या आउटपुट मिलने वाला है? हमको आउटपुट मिलेगा 12। नीचे के इंक्रीमेंट में हमको आउटपुट मिलेगा 30। जब डिक्रीमेंट करने जाएंगे तो ये वैल्यू डिक्रीमेंट हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी 12 और नीचे आपको वैल्यू मिलेगी 11। अब इस प्रोग्राम को रन करके देखें कि हमारा आउटपुट क्या मिल रहा है तो हमको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अब इसको हम रन करके देखते हैं तो हमारा आउटपुट मिलता है 10, 11, 12, 13, 12 और 11। फिर से इसको हम देखते हैं। पहला 10 इसके लिए आया, ये दूसरा इंक्रीमेंट, ये इंक्रीमेंट है, ये कहाँ से आया? a इज इक्वल टू यहाँ 10 था, 10 हो गया 11 और ये स्क्रीन पे प्रिंट कर दिया। तीसरा जो इंक्रीमेंट है, दूसरा इंक्रीमेंट ये वहाँ से आया। क्यों? क्योंकि a की वैल्यू थी 11, जब यहाँ 11 जाएगा तो ये कर देगा 12 यहाँ पे आपके स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। फिर इंक्रीमेंट कॉल होगा, 13 प्रिंट हो जाएगा। फिर जब डिक्रीमेंट कॉल होगा तो a की वैल्यू कितनी है? 13 और 13 माइनस माइनस मतलब स्क्रीन पे आ गया 12, ये आपके स्क्रीन पे आके प्रिंट हो गया। फिर से आप डिक्रीमेंट कॉल करोगे तो 12 थी, 12 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? 11, यहाँ पे आपको 11 मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से आप एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास को यूज कर सकते हैं। तो इसमें जो हमने सीखा वो ये है कि अगर हम कोई भी स्टोरेज क्लास डिफाइन नहीं करते हैं तो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास असाइन हो जाता है। रजिस्टर बहुत ही लिमिटेड है तो रजिस्टर स्टोरेज क्लास का यूज आपको बहुत ही केयरफुली करना है। स्टैटिक स्टोरेज क्लास का यूज केयरफुली इसलिए करना है क्योंकि वो थ्रू आउट द फंक्शन आप उसको एक्सेस कर सकते हो। वो वेरिएबल एक्टिव रहता है, उसमें वैल्यू स्टोर होते रहती है, इंक्रीमेंट चलते रहता है, वो वेरिएबल डिस्ट्रॉय नहीं होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट ग्लोबल वेरिएबल जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया था, मतलब ये जो इंटीजर a जो डिफाइन किया है वो ग्लोबल वेरिएबल है, उसको कोई भी यूज कर सकता है। जितने भी फंक्शन आपके प्रोग्राम के अंदर होंगे वो सारे फंक्शन इसको यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास क्या होता है। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लेते हैं। You have to use external storage class for only those variables that are being used by almost all the function in the program. Never declare a function as an external variable if you are using that variable in only one or two function. So if many functions are using the same variable, then always declare that variable as a external variable. External variable remains active throughout the life of the program. जब तक आपका प्रोग्राम एग्जिस्ट करता है तब तक आपका एक्सटर्नल वेरिएबल एक्टिव रहता है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक्सटर्नल वेरिएबल के लिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये जो तीसरा पॉइंट मैंने जो आपको लिखा है कि इफ द वेरिएबल इज डिफाइंड आउटसाइड ऑल द फंक्शन, जैसा कि हमने पिछले प्रोग्राम में डिफाइन किया था, अगर किसी वेरिएबल को सभी फंक्शन के बाहर आप डिक्लेयर करते हैं तो नॉट ओनली दैट वेरिएबल विल बी अवेलेबल टू ऑल अदर फंक्शन इन द फाइल, ना तो सिर्फ वो फाइल में अवेलेबल रहता है बल्कि दूसरे फाइल में भी आप उसको एक्सेस कर सकते हो। मतलब ऐसा वेरिएबल जो इसने, जैसे कि पुराने प्रोग्राम में मैंने लिखा था, ये जो वेरिएबल है, जो वेरिएबल ए वेरिएबल यहाँ पे जो दिख रहा है आपको एक्सटर्नल इंटीजर ए, ये वेरिएबल मैंने सारे फंक्शन के ऊपर इसको डिफाइन किया है। मतलब इस वेरिएबल को आप इस फाइल के अलावा किसी दूसरे फाइल में भी यूज कर सकते हो। जहां भी आपको यूज करना है आपको ये डेफिनेशन उसका देना पड़ेगा, उसके बाद आप उसको यूज कर पाएंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास की। सो ये हुआ स्टोरेज क्लास के बारे में कुछ बेसिक्स मैंने आपको बताए। अगर इसमें से कुछ भी रिलेटेड इश्यूज हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।